নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৰজত কমল বঁটা প্ৰাপক অসম সন্তান লুইত কুমাৰ বৰ্মনে পুনৰবাৰ কৈছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত গোচৰ ৰুজু কৰিছে অসম সন্তান তথা ৰজত কমল বঁটা প্ৰাপক লুইত কুমাৰ বৰ্মনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ এক সাক্ষাৎকাৰত মহাত্মা গান্ধী সন্দৰ্ভত কেতবোৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে যেতিয়ালৈকে মহাত্মা গান্ধীৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ সিনেমা নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে মহাত্মা গান্ধী কোনেও চিনি পোৱা নাছিল আকৌ কৈছো ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত মোদীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল যেতিয়ালৈকে মহাত্মা গান্ধীক লৈ সিনেমা নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে কোনেও চিনি পোৱা নাছিল মহাত্মা গান্ধীক আৰু মহাত্মা গান্ধীক লৈ যি ধৰণে মন্তব্য কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তাক লৈ সৰব হল ৰজত কমল বঁটা প্ৰাপক লুইত কুমাৰ বৰ্মন মহাত্মা গান্ধীক কৰা অপমান কাহানিও সহ্য কৰা নহব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰি হাতীগাঁও থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে ৰজত কমল বঁটা প্ৰাপক এয়া লুইত কুমাৰ বৰ্মনে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছে নিটক্সৰ দৰ্শকক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৰজত কমল বঁটা প্ৰাপক লুইত কুমাৰ বৰ্মনে হাতীগাঁও থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে লুইত কুমাৰ বৰ্মনে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মহাত্মা গান্ধীক তাচ্ছিল্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লুইত কুমাৰ বৰ্মনে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাতীগাঁও থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে সিনেমাৰে তুলনা কৰি গান্ধী তথা দেশবাসীক অপমানিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লুইত কুমাৰ বৰ্মনে মহাত্মা গান্ধীক মোদীয়ে অপমান কৰাটো কেতিয়াও সহ্য নকৰো স্পষ্ট ৰূপত এই কথা উল্লেখ কৰিছে লুইত কুমাৰ বৰ্মনে প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে ৰজত কমল বঁটা প্ৰাপক লুইত কুমাৰ বৰ্মনে প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা হাতত লওক মহাত্মা গান্ধীক তেতিয়ালৈকে কোনেও নাজানিছিল যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ ওপৰত সিনেমা নিৰ্মাণ হোৱা নাছিল এনে ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহাত্মা গান্ধীক লৈ কৰা এই মন্তব্যৰ পিছতে দেশজুৰি ককৰ্থনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে দেশৰ জনতাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে অৱশেষত এনে ধৰণে গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁও থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৰজত কমল বঁটা প্ৰাপক অসম গৌৰৱ এয়া লুইত কুমাৰ বৰ্মনে এই এজাহাৰ কপি এই মুহূৰ্ত দেখুৱাই আছো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এনে ধৰণে গোচৰ ৰুজু কৰিছে হাতীগাঁও থানাত ৰজত কমল বঁটা প্ৰাপক লুইত কুমাৰ বৰ্মনে আকৌ কৈছো যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফালৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ এক সাক্ষাৎকাৰত কোৱা হৈছিল যে মহাত্মা গান্ধীক লৈ যেতিয়ালৈকে সিনেমা নিৰ্মাণ হোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে মহাত্মা গান্ধীক কোনেও চিনি পোৱা নাছিল এনে ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মোদীৰ যি মন্তব্য তাৰ পাছতে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ ভিডিঅ' ক্লিপ সমগ্ৰ দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই মন্তব্যক লৈ বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত সকলোৱে একেমুখে গৰিহণা দিছে ককৰ্থনা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক আৰু অসমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰজত কমল বঁটা প্ৰাপক লুইত কুমাৰ বৰ্মনৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক অপমান কৰাটো কাহানিও কোনোদিনে সহ্য কৰা নহব আৰু মই আশা ৰাখিছো যে প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা হাতত ল'ব হাতীগাঁও থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে এইগৰাকী ৰজত কমল বঁটা প্ৰাপক লুইত কুমাৰ বৰ্মনে এই মুহূৰ্তত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সেই বিশেষ মন্তব্য আমাৰ লগত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত কি কৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহাত্মা গান্ধী সন্দৰ্ভত মন দি एक सवाल मेरे मन में 500 बरस का इंतजार खत्म हुआ रामलला अपने स्थान पर विराजे और दिव्य भव्य राम मंदिर जो है वो बहुसंख्यकों की सहिष्णुता के प्रतीक के तौर पर हमारे सामने है ये नियति है कि उसकी भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक सब कुछ आपके हाथों से संपन्न हुआ लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस मौके पर जो विपक्ष ने एक दूरी बनाई क्या आपको लगता है कि ये देश भारतीय समाज भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कार को लेकर इस देश के विपक्ष की जो समझ सामने निकल कर आई है इस चुनाव में उसका आकलन करेगा एक है कि इन्होंने
राजनीति के शॉर्टकट ढूंढे हैं और इसलिए वो वोट बैंक की राजनीति में फंस गए। और वोट बैंक की राजनीति में फंसने के कारण वे लोग घोर सांप्रदायिकवाद हो गए, घोर जातिवादी हो गए, घोर परिवारवादी हो गए। और दूसरा, गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आए। वरना क्या कारण है कि 19वीं शताब्दी के कानून आज मुझे 21वीं शताब्दी में चेंज करने की नौबत आई, वो पहले होना चाहिए था मुझे। तो ये दुर्दशा रही। अब सवाल हमारे तीर्थ क्षेत्रों का सिर्फ नहीं है, भारत के, मुझे बताइए, दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? हमने नहीं किया था। इस देश का काम था, अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी को दुनिया जानती है, गांधी जी से कम नहीं थे जी। और ये मानना पड़ेगा जी। मैं दुनिया में घूमने के बाद कह रहा हूं कि गांधी को और गांधी के माध्यम से भारत को तो तवज्जो मिलनी चाहिए थी। आज दुनिया की कई समस्याओं का समाधान में गांधी है जी, लेकिन हम गांधी को नहीं, तो हमने अपना बहुत कुछ खोया है। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मैंने बनाया, दांडी, कभी कोई जाए, दांडी जो मैंने बनाया, दांडी जाकर के देखिए जी। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाए, अब जाके देखिए। हमारे इतिहास को जीना चाहिए, हमने इतिहास से हमने जुड़े रहना चाहिए, उसमें सांस्कृतिक विरासत भी है। दूसरा, इस देश को गर्व के साथ दुनिया में ब्रांड करना चाहिए था। 500 साल की लड़ाई थी, लेकिन जब अदालत ने जजमेंट दिया, यह देश के अंदर पूर्ण रूप से शांति रही। अब ये शांति कोई एक तरफा नहीं है, शांति के लिए उसके क्रेडिट सबको जाता है। हमने इसका ब्रांडिंग करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए था। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण सम्मान के साथ, पूर्ण गौरव के साथ की, तो आप कहते हैं विकास भी और विरासत भी। एक सवाल मेरे मन में है, 500 बरस का इंतजार खत्म हुआ, रामलला अपने स्थान पर विराजे और दिव्य भव्य राम मंदिर जो है वो बहुसंख्यकों की सहिष्णुता के प्रतीक के तौर पर हमारे सामने है। ये नियति है कि उसकी भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक सब कुछ आपके हाथों से संपन्न हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस मौके पर जो विपक्ष ने एक दूरी बनाई, क्या आपको लगता है कि ये देश भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार को लेकर इस देश के विपक्ष की जो समझ सामने निकल कर आई है, इस चुनाव में उसका आकलन करेगा? एक है कि इन्होंने राजनीति के शॉर्टकट ढूंढे हैं और इसलिए वो वोट बैंक की राजनीति में फंस गए। और वोट बैंक की राजनीति में फंसने के कारण वे लोग घोर सांप्रदायिकवाद हो गए, घोर जातिवादी हो गए, घोर परिवारवादी हो गए। और दूसरा, गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आए। वरना क्या कारण है कि 19वीं शताब्दी के कानून आज मुझे 21वीं शताब्दी में चेंज करने की नौबत आई, वो पहले होना चाहिए था मुझे। तो ये दुर्दशा रही। अब सवाल हमारे तीर्थ क्षेत्रों का सिर्फ नहीं है, भारत के, मुझे बताइए, दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? हमने नहीं किया था। इस देश का काम था, अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के
नेल्सन मंडेला जी को दुनिया जानती है, गांधी जी की से कम नहीं थी जी। और ये मानना पड़ेगा जी, मैं दुनिया में घूमने के बाद कह रहा हूं कि गांधी को और गांधी के माध्यम से भारत को तो तवज्जो मिलनी चाहिए थी। आज दुनिया की कई समस्याओं का समाधान में गांधी है जी, लेकिन हम गांधी को ले तो हमने अपना बहुत कुछ खोया है। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मैंने बनाया, दांडी कभी कोई जाए, दांडी जो मैंने बनाया, दांडी जाकर के देखिए जी। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाए, अब जाके देखिए। हमारे इतिहास को जीना चाहिए, हमने इतिहास से हमें जुड़े रहना चाहिए, उसमें सांस्कृतिक विरासत भी है। दूसरा, इस देश को गर्व के साथ दुनिया में ब्रांड करना चाहिए। 500 साल की लड़ाई थी, लेकिन जब अदालत ने जजमेंट दिया, यह देश के अंदर पूर्ण रूप से शांति रही। अब ये शांति कोई एक तरफा नहीं है, शांति के लिए उसके क्रेडिट सबको जाता है। हमने इसका ब्रांडिंग करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए था। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण सम्मान के साथ, पूर्ण गौरव के साथ की तो आप कहते हैं विकास भी और विरासत भी। एक सवाल मेरे मन में है, 500 बरस का इंतजार खत्म हुआ, रामलला अपने स्थान पर विराजे और दिव्य भव्य राम मंदिर जो है वो बहुसंख्यकों की सहिष्णुता के प्रतीक के तौर पर हमारे सामने है। ये नियति है कि उसके भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक सब कुछ आपके हाथों से संपन्न हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस मौके पर जो विपक्ष ने एक दूरी बनाई, क्या आपको लगता है कि ये देश भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार को लेकर इस देश के विपक्ष की जो समझ सामने निकल कर आई है, इस चुनाव में उसका आकलन करेगा? एक है कि इन्होंने राजनीति के शॉर्टकट ढूंढे और इसलिए वो वोट बैंक की राजनीति में फंस गए। और वोट बैंक की राजनीति में फंसने के कारण वे लोग घोर सांप्रदायिकवाद हो गए, घोर जातिवादी हो गए, घोर परिवारवादी हो गए। और दूसरा, गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आए। वरना क्या कारण है कि 19वीं शताब्दी के कानून आज मुझे 21वीं शताब्दी में चेंज करने की नौबत आई, तो पहले होना चाहिए था। तो ये दुर्दशा रही। अब सवाल हमारे तीर्थ क्षेत्रों का सिर्फ नहीं है, भारत के, मुझे बताइए, दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? हमने नहीं किया जी। इस देश का काम था, अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी को दुनिया जानती है, गांधी जी की से कम नहीं थी जी। और ये मानना पड़ेगा जी, मैं दुनिया में घूमने के बाद कह रहा हूं कि गांधी को और गांधी के माध्यम से भारत को तो तवज्जो मिलनी चाहिए थी। आज दुनिया की कई समस्याओं का समाधान में गांधी है जी, लेकिन हम गांधी को ले तो हमने अपना बहुत कुछ खोया है। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मैंने बनाया, दांडी कभी कोई जाए, दांडी जो मैंने बनाया, दांडी जाकर के देखिए जी। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाए, अब जाके देखिए। हमारे इतिहास को जीना चाहिए, हमने इतिहास से हमें जुड़े रहना चाहिए, उसमें सांस्कृतिक विरासत भी है। दूसरा, इस देश को गर्व के साथ दुनिया में ब्रांड करना चाहिए। 500 साल की लड़ाई थी, लेकिन जब अदालत ने जजमेंट दिया, यह देश के अंदर पूर्ण रूप से शांति रही। अब ये शांति कोई एक तरफा नहीं है, शांति के लिए उसके क्रेडिट सबको जाता है। हमने इसका ब्रांडिंग करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए था। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण सम्मान के साथ, पूर्ण गौरव के साथ की तो आप कहते हैं विकास भी और विरासत भी। एक सवाल मेरे मन में है, 500 बरस का इंतजार खत्म हुआ, रामलला अपने स्थान पर विराजे
और दिव्य भव्य राम मंदिर जो है वो बहुसंख्यकों की सहिष्णुता के प्रतीक के तौर पर हमारे सामने है। ये नियति है कि उसकी भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक सब कुछ आपके हाथों से संपन्न हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस मौके पर जो विपक्ष ने एक दूरी बनाई, क्या आपको लगता है कि ये देश भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार को लेकर इस देश के विपक्ष की जो समझ सामने निकल कर आई है, इस चुनाव में उसका आकलन करेगा? एक है कि इन्होंने राजनीति के शॉर्टकट ढूंढे और इसलिए वो वोट बैंक की राजनीति में फंस गए और वोट बैंक की राजनीति में फंसने के कारण वे लोग घोर सांप्रदायिकवाद हो गए, घोर जातिवादी हो गए, घोर परिवारवादी हो गए। और दूसरा, गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं गए। वरना क्या कारण है कि 19वीं शताब्दी के कानून आज मुझे 21वीं शताब्दी में चेंज करने की नौबत आई, वो पहले होना चाहिए था मुझे। तो ये दुर्दशा रही। अब सवाल हमारे तीर्थ क्षेत्रों का सिर्फ नहीं है, भारत के, मुझे बताइए, दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? हमने नहीं किया जी। इस देश का काम था, अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी को दुनिया जानती है, गांधी जी से कम नहीं थे जी। और ये मानना पड़ेगा जी। मैं दुनिया में घूमने के बाद कह रहा हूं कि गांधी को और गांधी के माध्यम से भारत को तो तवज्जो मिलनी चाहिए थी। आज दुनिया की कई समस्याओं का समाधान में गांधी है जी, लेकिन हम गांधी को नहीं, तो हमने अपना बहुत कुछ खोया है। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मैंने बनाया, दांडी, कभी कोई जाए, दांडी जो मैंने बनाया, दांडी जाकर के देखिए जी। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाए, अब जाके देखिए। हमारे इतिहास को जीना चाहिए, हमने इतिहास से हमने जुड़े रहना चाहिए, उसमें सांस्कृतिक विरासत भी है। दूसरा, इस देश को गर्व के साथ दुनिया में ब्रांड करना चाहिए था। 500 साल की लड़ाई थी, लेकिन जब अदालत ने जजमेंट दिया, यह देश के अंदर पूर्ण रूप से शांति रही। अब ये शांति कोई एक तरफा नहीं है, शांति के लिए उसके क्रेडिट सबको जाता है। हमने इसका ब्रांडिंग करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए था। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण सम्मान के